Thank you guys. Welcome back. Thank you for your overwhelming response. It was amazing, incredible. In just 5-6 days, we have almost 1,000 views. That is remarkable. And in that context, I'm going to come with more videos for you. There will be videos coming like interview facing, like group discussion tips, like introduction, like different topics, communication. And please, one more thing. At the end, you'll find a contest in which you might get 100 rupees as PAYTM in your personal PAYTM account. So for that, please keep watching my full video now. So we are talking about COVID-19, now this call is Corona also. Final, last communication skills credit, vocabulary related to Corona right now. So we talked about what else words we can use in this. We talked about force majeure. I'm just giving you a recap. Force majeure, or we talked about unprecedented, unanticipated event. It was then we talked about calamity that happened. Then we talked about other words like virulent, which is very hazardous, fatal. So all those words. Now we have the rest of the vocabulary that we can incorporate in this discussion. First is panic, commotion, unrest. I repeat, if you're not actually, one more thing, thank you so much for your pieces of advice which was given by my well-wishers, my followers, my fans, my family members. Sister from US, he called me up and said, this is the thing that you have to keep in mind. Now you can zoom it also, you can see in the broader format. One of my students, Saranjeet, gave me the advice. Then my brother gave me the sound has to be much more clearer, so I'm trying my fullest. Of course, this is lockdown, so whatever modes I have, whatever mediums I have, I'm trying to give the best from that. So please check this out and please put your earplugs on. And that's what I recommend right now. Anyways, so panic, commotion, I repeat, if you're not able to understand the pronunciation, you can ask me again. So panic, commotion, unrest. That means बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाना, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी बात पे अफरा तफरी हो जाना. That is because जैसे लोग कर रहे हैं आजकल. In fact, I saw one of the news today in which they're like hurling stones and pelting stones on a team, hospital team and doctors, and we talked about policemen, cops. So that's not done. So this is what we call panic, commotion, and unrest. जब बहुत ज़्यादा अफरा तफरी, बेचैनी हो जाए, रेस्टलेसनेस हो जाए, उसके लिए हम बोलते हैं. डायर कॉन्सिक्वेंसेस, एक जनरल डायर भी थे, अगर आपको याद हो, बहुत खतरनाक अंग्रेजों के टाइम पे. सो ये वो DY रहते, ये DI आ रही है. डायर कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरकशंस, S मिसिंग है तो मैं लिख देता हूँ. रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस और रिपरकशन का मतलब होता है परिणाम. डायर मीन्स घातक, सीरियस. अगर ऐसा कुछ चलता रहा, अगर हम लॉकडाउन में नहीं बैठे तो इसके बड़े बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं. हम देख रहे हैं US में भी हुआ है. It's seen, I reiterate मतलब किसी बात को बार बार दोहराना. We've seen celebrities telling you that please don't do this, because आप खुद तो अपने आप को परेशान करेंगे और पूरा समाज वो सब परेशान हो सकता है. सो इसके बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं जो आप अनरेस्ट दिखा रहे हैं. बहुत सारे लोग अभी स्ट्रीट्स पे आ गए. That is wrong. That happened in Mumbai, 2 days back. Bourses, Sensex has plummeted. आप कुछ केसेस में हुआ कभी, जो सेंसेक्स होता है, बोर्सेस हम बोलते हैं शेयर मार्केट, it's called bourses. Bourses, share market, Sensex has plummeted. Plummeted means gone down. No, वैसे तो volatile होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, but right now it has plummeted because कुछ shares, except we talk about medical pharma के जो shares हैं, वो they are zooming like anything. But yes, otherwise the market is bit volatile. सब लोग सब चीज़ें गिर रही हैं. So that is what keeping in mind. So इसके बहुत सारे repercussions ये भी हमें सीखना है. Economy is under pressure. We all know that our honorable Prime Minister Mr. Modi is doing every bit. In fact, every bureaucrat, everyone who's involved in the administration, they're doing 100%. My salute to the team. Hats off to them. God bless them. So this is what I want. The economy is terribly under pressure. We all know that it's been locked down for almost a month now, and we all know that this is under pressure because we know that because of this हमारी इकोनॉमी बहुत सारे लोग आउट ऑफ जॉब हो सकते हैं. सो दिस इज व्हाट ये प्रेशर है. इकोनॉमी मतलब जो हमारी सिस्टम है जिसमें हमारा पैसा सब घूमता है, सब सिस्टम में एक ब्लॉकेज हो सकता है. ओके, देन वी हैव देयर इज स्लम्प
रिसेशन, मेल्टडाउन, तो डिप्रेशन भी बोलते हैं, जैसे लोग कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं। स्लम और स्लम में कंफ्यूजन मत होइएगा, स्लम एरियाज होते हैं जो कि झोपड़ियाँ ऐसी जगह जैसे धारावी है प्रॉब्लम है, वो स्लम बोलते हैं। स्लम हो गया जब मंदी का दौर होता है, रिसेशन होता है। मेल्टडाउन भी बोलते हैं, मेल्टडाउन इन द ग्लोबल स्फीयर, टॉक अबाउट ग्लोबली ऑल्सो बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, तो स्लम, मेल्टडाउन, रिसेशन, डिप्रेशन इन द market, so that is what. So please don't worry, it's a passing phase, it will go. Misleading posts are spreading the grapevine. बहुत सारी मेरे पास दिन भर WhatsApp, आप लोगों के पास भी आते होंगे, WhatsApp आते हैं, Facebook पे शेयरिंग करते हैं लोग, they write about कुछ भी लिख देते हैं, फेक न्यूज़ होती है, यहाँ पे ये हुआ। इनफैक्ट आज मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें किसी ने कहा कि एक सेलिब्रिटी वरुण धवन पुलिस वाले से हैंडशेक करते, उन्होंने कहा दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज, but he said it was 2 months back photograph. So these are all misleading photographs, misleading posts as we call it, are spreading the grapevine. अब grapevine कोई अंगूर की बेल नहीं है, grapevine कोई ग्रेप की शराब नहीं है, grapevine का मतलब होता है rumor, अफवाह, और अफवाह बाज होते हैं rumor mongers। इस वक्त उनके लिए जैकपॉट है कि वो जो भी लिखना चाहे लिख पाते हैं। So please don't pay heed, मतलब अटेंशन मत दीजिएगा, उन पर ध्यान मत दीजिएगा, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी, तो सो दैट आप भी सुखी रहें। और ऐसी पोस्ट को आप तुरंत पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको इन्फॉर्म करें दैट वी आर गेटिंग दिस, दे माइट बी प्रोवोकेटिव, भड़काऊ चीज़ें भी हो सकती हैं। सो प्लीज काम डाउन, मिलो डाउन प्लीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एम्पैथाइज। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऑर्डर्ड रिलीफ पैकेजेस मॉरेटोरियम। ये वर्ड आजकल बहुत यूज हुआ है। इनफैक्ट जब पहला लॉकडाउन पार्ट 1 हुआ था, सो मॉरेटोरियम के लिए कहा गया। मॉरेटोरियम इज अ टेम्पररी स्टॉपेज, कोई भी चीज़ को जो थोड़े दिनों के लिए रोक दिया जाता है। मॉरेटोरियम फॉर द लोन्स, जैसे बोला था कि कुछ लोग EMI नहीं देते 3 महीने तक, ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूव्स बाय द गवर्नमेंट। 3 महीने तक कुछ लोगों को ये भी गवर्नमेंट ने कहा कि हो सके तो उनका रेंट माफ कर दिया जाए, व्हाटएवर थिंग्स। सो मॉरेटोरियम इज टेम्पररी स्टॉपेज टू एवरीथिंग। तो moratorium for the loans, moratorium for the EMIs, for car loans, whatever. So relief packages दिए हैं अभी। I was reading that 1,70,000, to the best of my knowledge, I might be wrong, please check it out, your facts. 1,70,000 crores government ने relief package दिया, which is a huge amount। और बहुत important बात है, मुझे एक लाइन याद आ गई कि जब आपको दर्द हो तो आप जीवित हैं, आप में जान है, बट जब आप दूसरे का दर्द महसूस कर पाए वही आप सच्चे इंसान हैं। तो दिस इज व्हाट, सो आई बिलीव दैट गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड, यू नो, दिस इज व्हाट वी ऑल नो। सो ये आप प्लीज ध्यान रखिए कि जब आप दूसरे का प्रॉब्लम समझ पाते हैं, उसके हिसाब से सोच पाते हैं, सो दैट मेक्स यू ह्यूमन, एंड दैट इज द बिगेस्ट रिलीजन वी हैव। देन टू रेस्क्यू बचाने के लिए, द होई पोलोई, एक बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, होई पोलोई, इट्स नॉट अ चाइनीज वर्ड, इट्स एन इंग्लिश वर्ड। होई पोलोई आर द कॉमन मैन, आम आदमी, हम सब की तरह। हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स होते हैं रिच लोग, हैव नॉट्स होते हैं गरीब। सबके लिए उन्होंने कहा है, कुछ इंडस्ट्री के लिए पैकेज है तो वो हैव्स हो गए, जो गरीब लोग हैं वो हैव नॉट्स हो गए, होई पोलोई हो गई आम जनता। तो सबके लिए रिलीफ पैकेजेस, मॉरेटोरियम, हॉल्ट टू रेस्क्यू सेव द होई पोलोई, आम आदमी, गरीब, अमीर और गरीब, एंड बुर्जुआ। बहुत सबसे हमारे हिंदुस्तान में सबके लिए कुछ ना कुछ है। सब लोग मेरे पास आते हैं, खेती बात का डिस्कशन होता है, कहते हैं सर कि अमीरों के लिए है, कर पाते हैं, गरीब के लिए हो जाता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय लोग। हम लोगों को कोई ध्यान नहीं देता, बट पॉइंट इज गवर्नमेंट सबका ध्यान रख रही है। और बुर्जुआ होते हैं मध्यम वर्गीय लोग, हम सब की तरह। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बुर्जुआ। सो मैंने सब कवर किया, इसमें आम आदमी, गरीब, अमीर, गरीब और बुर्जुआ, इसे बोलेंगे, लिखा जाता है BOURGEOS, बट प्रोनाउंसिएशन है बुर्जुआ। बुर्जुआ मतलब मिडिल क्लास। नेक्स्ट, गिग वर्कर्स आर माइग्रेटिंग टू देयर नेटिव प्लेसेस। अभी जैसे 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने देखा बॉम्बे में, बैंड्रा वेस्ट में, बनी ईस्ट में, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए इस वक्त के लिए हमें जाना है। सो गिग वर्कर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करते हैं बेचारे, उन सब लोगों के लिए माइग्रेटिंग, दे प्लान टू माइग्रेट टू देयर नेटिव प्लेस जहाँ पे वो रहने वाले हैं। सो जैसे आप नेटिव इंडियंस हैं जो बाहर देख रहे होंगे मेरा वीडियो, वहाँ के जो US के लोग होंगे, US के नेटिव हैं। सो जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, जो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं
वो दैट इज देयर ओन प्लेस कॉल्ड नेटिव प्लेसेस। एक्सोडस होता है पलायन जिसे हम कहते हैं, वी कॉल इट, जब कोई भी व्यक्ति अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है। कई सारे लोग एक साथ जाते हैं, जैसे कई बार हमने देखा है कि बॉर्डर पे कई बार होता है, बहुत वॉर होती है, तो उस पूरे विलेज को एक्सोडस किया जाता है, उन सबको वहाँ से निकाला जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सोडस, अ प्रोसेस इन विच पीपल लीव इन ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सम रीजंस। ओके, सो दिस पार्ट इज ओवर, लेट मी फ्लाई टू द नेक्स्ट सेगमेंट इन विच वी टॉक अबाउट, बहुत सारे इधर के कुछ वर्ड्स हैं। वल्नरेबल होता है सॉफ्ट टारगेट। वल्नरेबल एज होती है, लाइक टीनेज इज वल्नरेबल एज। वल्नरेबल स्पॉट्स होते हैं जैसे मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है बंद कर दीजिए। सो वल्नरेबल, कोरोना में बोला है गवर्नमेंट द्वारा, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग, सेनाइल्स हैं, किड्स हैं, इन्फेंट्स हैं, दे आर मोस्ट वल्नरेबल पीपल। सो वल्नरेबल स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे आसानी से चोट पहुँचाई जाती है, जहाँ पे आसानी से फैल सकता है। सॉफ्ट प्लेसेस आर कॉल्ड, सॉफ्ट एजेस आर वल्नरेबल एजेस, और वल्नरेबल पीपल जिनको आसानी से ये चीज़ हो सकती है। रिसर्जेंस, रीअकरेंस, गवर्नमेंट, अभी हमने देखा चाइना में फिर से हो गया, रिसर्जेंस हो गई। सो अभी WHO ने भी कहा कि इफ यू डोंट पे अटेंशन टू द लॉकडाउन राइट नाउ, यू डोंट अलाउ पीपल टू स्टे इन देयर हाउसेस, इफ दे आर मूविंग हियर एंड देयर, देन देयर माइट बी अ रिसर्जेंस, reoccurrence of the same thing. So please, I request you again with folded hands, please stay down, stay put, and that is we call it resurgence. So resurgence is जब चीज वापस फिर से आ जाए, उसको हम बोलते हैं resurgence. Pandemonium is kind of chaos, अफरा तफरी का माहौल, बहुत ज़्यादा पेंडेमोनियम हो जाता है। जैसे अभी कल मैंने देखा कि लोगों ने पत्थर मारे, स्टोन पेंटिंग हुई, उस वक्त chaos हो गया था। That is also called pandemonium. So to avoid pandemonium and panic and commotion, unrest, please don't do this. I repeat. Flouting the norms, violating the norms. Norms होते हैं rules, regulations, निर्देश सरकार द्वारा, जो तोड़ेगा उसे हम कहते हैं फ्लाउट। जैसे रेड लाइट आप जंप कर गए तो वही फ्लाउटिंग ऑफ द नॉर्म्स है। और बट इस वक्त फ्लाउटिंग ऑफ द नॉर्म्स है कि अगर आप लॉकडाउन में हैं, शैल नॉट अलाउड टू मूव आउट, सो प्लीज स्टे at home. That is also, some people are not following it, they are flouting the norms, violating the norms, and government is taking stern measures against everyone. So the next word is hoarding. Hoarding होता है जो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग काला बाजारी कर लेते हैं। इनफैक्ट that speculate, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि आजकल ज़रूरत है अनाज की, सब चीज़ों की, सो बहुत सारे लोग उसे पहले से रख लेते हैं दबा के, ताकि उसको ब्लैक मार्केट करके बेचें, जो चीज़ें नहीं मिल रही उनको डबल कर दें। सो होर्डिंग इज ऑल्सो देयर, जो लोगों को नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये आपका देश है, सबका देश है। सो मेरी फिर एक आपसे रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ आप होर्डिंग ना करिए। ये टाइम है आपको बताने का कि हम सब लोग मिल के ये चीज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़। देन वी हैव सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी हम सब चाहते हैं। मैं भी देख रहा था एक वीडियो, अक्षय कुमार और आर्यन, कार्तिक आर्यन, ये सब लोगों ने मिलके एक वीडियो बनाया है जिसमें हम सब लोग, ऑल रिलीजन्स, ऑल टुगेदर ट्राई, दिस इज टाइम टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर इक्वल, वी आर टुगेदर। हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम सब एक जैसे हैं, एक साथ हैं। सॉलिडारिटी होती है एकता। यही समय है हम सब मिलके दिखाएं कि ये क्राइसिस को हम मिटिगेट करें। मिटिगेट मीन्स कम कर देना। ये जो हमारे पास क्राइसिस आया हुआ है, जो हमारा टेस्टिंग टाइम्स है, ट्राइंग टाइम्स है, हमारा ऐसा दौर है जिसमें हम सब लोग एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम एक ही है। सो मिटिगेट करना, कम करना, रिड्यूस करना। अगर हम एकता दिखाएंगे, सॉलिडारिटी दिखाएंगे, यूनिटी दिखाएंगे, तो हम इस क्राइसिस को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड देन वी आर कॉशियस, वी आर लाइक द वर्ड इज कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट भी कहते हैं इसे। हमें एजाइल रहना है, कॉशियस रहना है, जागरूक रहना, जागरूक इज कॉग्निजेंट। तो हम चारों तरफ ध्यान रखें कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कि लॉकडाउन को ख़राब कर दे। ऐसे हमें कोई भी मिसक्रिएंट्स, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स लगें जो एजिटेशन कर रहे हैं या जो कुछ ऐसी चीज़ करें, सो वी शुड इन्फॉर्म पुलिस, देयर इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। हमें को लगता है कि कोई प्रॉब्लम में है या किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, सो वी हैव टू वेरी वेरी कॉशियस। कॉग्निजेंट इज जागरूक, अवेयर। द मोर कॉग्निजेंट वी आर, the more chances that we'll find it out. I'm sure we will find it out together. I'm sure we have to show solidarity and mitigate the crisis. Contain means इसे कम करना, इसे रोकना। जितना हम solidarity दिखाएंगे,
जितना हम कॉशियस रहेंगे, जितना हम कॉग्निजेंट रहेंगे, उतना ही हम इसे मिटिगेट कर देंगे और इस वायरस को कंटेन कर देंगे। मुझे एक लाइन मैंने एक सुनी थी, वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये सब के लिए है कि हम लोगों ने बहुत क्राइसिस देखा है, कितने साल क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सब ने मिल के करा है। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ ये सब चीज़ें कि आप सब लोग भी बोल सकते हैं, अपने आप को बार बार रिवाइज करते रहिए चीज़ रखें कि ना थके हैं पाँव, ना हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कई दौर और सफ़र आज भी जारी है और जारी रहेगा ये सफ़र, मेरा भी, आप लोगों का भी। मैं आपको सारे वीडियोस भेजता रहूँगा। प्लस मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं कुछ एक चीज़ करने वाला हूँ जिसमें आपको पेटीएम में 100 रुपीज़ मिलेंगे। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9412142060। आई रिपीट 9412142060। आप इस पे वर्ड फॉर्मेट में, पीडीएफ में, वीडियो में, कोई भी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, सबसे पहले तो बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल दबा दीजिए, सॉरी, बिकॉज मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, घर की बेल तो बजनी, तो मेरी बेल बजाती चाहिए सब लोग, खड़ा खड़ा खड़ा। एंड दैट्स व्हाट आई वांट कि गेम ये है कि जो भी मैंने पार्ट 1 में आपको वोकैबुलरी बताई थी और जो आज बताई है, उन सबको मिक्स करके जो मैक्सिमम यूजेज ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी के ऐसे एक राइटअप, एक वीडियो भेजेगा और जो बेस्ट होगी, हम उसमें से 5 लोगों को 100 रुपीज़ का पेटीएम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और प्लीज़ जिस अपने पेटीएम अकाउंट को बता दीजिएगा, वी विल रीचेक सो दैट आप सबको, सो अ चांस टू अर्न एंड लर्न ऑल्सो, सो वंडरफुल चांस, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, सो दैट कुछ लोग जो ताकि एक एफर्ट करें ताकि वो चीज़ देख पाए। मैं पैटर्न आपको बता चुका हूँ कैसे आपको कहानी बनानी है, वीक पैटर्न वो भी बताऊँगा आपको आने वाले सेशन में। सो ये भी आप चीज़ कर सकते हैं और सबको मिला के एक वोकैबुलरी आप यूज़ करेंगे, एक स्टोरी बना दीजिए, एक कहानी बना दीजिए। जितनी अच्छी कहानी होगी, जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी जीतने की। और उन 5 लोगों को हम फ्लैश करेंगे, उनका नाम बताएंगे भी, ताकि वो लोग भी अपना मैसेज मुझे भेज सकें। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि ये आप सब लोग फॉलो करेंगे। एंड जाते जाते मैं एक्सरसाइज कराता हूँ, तो फिर से एक एक्सरसाइज करा देता हूँ आप लोगों के लिए। पिछली बार वाली तो आपको याद है, अब इस बार वाली सब लोग, सबने घड़ी शायद पहनी हो, नहीं पहनी तो मोबाइल ले लीजिए हाथ में। मोबाइल तो फ्रंट पार्ट लाइट दिख जाए उसकी, वो ऑन कर लीजिए मोबाइल, और जिसने घड़ी पहनी हो मोबाइल ना लें, सब हाथ लोग ऊपर ऐसे ले आइए और ऐसे 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 चलाइए, चलाते जाइए। अब मोबाइल या घड़ी सामने लाइए। ओ बहुत देर हो गई, इतनी लंबी क्लास हो गई आपकी, सो अगली क्लास का इंतज़ार करिए। तब तक check my next video and please subscribe and share with everyone. God bless you all. Thank you so much. Like, share and subscribe to my channel.